اردشیر جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طوفانی پیش قدمی کے آگے ناقابل تسخیر چٹان بننے کے لیے نکلا تو اس کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں شہر لے لیا ہے اور فارس کی فوج حوصلے اور جذبے ہارے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ ہیرا شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں تو اردشیر بیمار پڑ گیا۔ ہیرا اتنا بڑا اور خوبصورت شہر تھا کہ اسے سلطنت فارس کا ہیرا کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے یہ شہر بغیر مقابلے کے لے لیا تھا۔ فرات کے کنارے جو لڑائیاں ہوئیں وہ فارس کی فوج کی پسپائی پر ختم ہوتی رہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے بلایا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فارسی ہمیں تھکا رہے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ایک جنگ سے بھاگ کر اگلے شہر یا علاقے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ لڑنا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر یہ فوج کسی قلعے یا میدان میں ہمارے مقابلے میں قدم جمائے گی، ہم تھکے ہوئے ہوں گے اور یہ فوج بڑی آسانی سے ہمیں نہ صرف شکست دے گی بلکہ ہمارا قتل عام کرے گی۔ کیا میرا یہ حکم ظالمانہ ہوگا کہ اگلی لڑائی میں فارس کے کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، خواہ وہ جنگی قیدی ہی ہو؟ دو تین سالاروں نے بیک زبان کہا، نہیں ابن ولید، اور ان میں سے ایک نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارا قتل عام ہو ہم ان کا قتل عام کریں گے جو ان لڑائیوں میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ تمام سالاروں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید کی۔ اگلی لڑائی زیادہ خونریز تھی، اس لڑائی کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں۔ آخر میں یوں ہوا کہ فارس کی فوج جس کی نفری مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا تھی پسپا ہونے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں پسپا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں زندہ پکڑا جائے۔ گھڑ سوار مجاہدین نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا اور انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں دریائے خصیف کے کنارے لا کر اس طرح قتل کیا جانے لگا کہ ان کے سر دریا میں گرتے اور جسم کنارے پر۔ فارس کی فوج میں تقریباً آدھی نفری عیسائیوں کی تھی۔ مسلسل 3 دن فارس کی فوج کے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ ان کا خون دریا میں گرتا تھا، دریا کا پانی لال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس قتل عام کو ظالمانہ کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا خیال کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کفار کے خون کا دریا بہاؤں گا، میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ اس عہد کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی 70,000 فوج کو جہنم واصل کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ اور مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ جب یہ خبر اردشیر تک پہنچی تو اس کی حالت بگڑنے لگی، اس پہ خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی پراسرار روگ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے صحت یاب کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہے، مگر اردشیر جو اپنے دور کا فرعون تھا گھلتا اور پگھلتا ہی چلا گیا۔ آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئے۔ انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کروا دیا کہ اردشیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ اردشیر کو پے در پے شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ اردشیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبریں سنائی جانے لگی، لیکن اردشیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ہی توہین نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی سلطنت ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا۔ اردشیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست عمرا وزراء نے اردشیر کی بیٹی آذرمدوخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آذرمدوخت جواں سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی، شہ سوار اور تیغزن تھی اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادوں اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رونتے چلے آ رہے
रहे थे। इस सूरत-ए-हाल में फारिस का तख्त फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिछौना बन गया था। वहाँ सयाद खश नाम का एक जवान आदमी था जो शाही खानदान के दूर पार के रिश्तेदारों में से था। महल की दुनिया के बासी जानते थे कि आज़रमिदौख्त सयाद खश में जो दिलचस्पी लेती है वो आम किस्म की दिलचस्पी नहीं। उन्हें महल के बाहर जंगल में भी इकट्ठे देखा गया था, लेकिन किसी ने भी कभी एतराज नहीं किया था। शहजादी शिकार खेलने जाया करती थी तो सयाद खश बज़ाहिर इत्तेफाक से उधर जा निकलता था। ये शहजादी तख्त पर बैठी तो उसने अपने आप को स्याह सफेद का मालिक समझ लिया। उसने पहला काम ये किया कि सयाद खश को बेशुमार जागीर अता कर दी और उसे हुकूमत में एक ऊंचा रुतबा दे दिया। फिर उसने सयाद खश के खानदान पर नवाजिशात का मेह बरसा दिया। एक रोज बूढ़े वजीर ने उसे कहा, मलिका आलिया, आपको तख्त पर इसलिए नहीं बिठाया गया था कि तख्त खाली नहीं रहना चाहिए, ना ही ये तख्त आपको विरसे में मिला है। हमने आप में कुछ खूबियां देखी थी। सल्तनत की हालत देखें और इसके मुताबिक हुक्म जारी करें। सल्तनत को मुसलमानों से बचाना है, मगर आपने इनाम इकराम का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज़रमिदौख्त ने तंजिया लहजे में कहा, क्या मैं खुद आगे जाकर लड़ूं? हमने इतनी बड़ी फौज क्यों रखी हुई है? आधा खजाना तो ये फौज खा जाती है। आज से ये मेरा हुक्म है कि किसी किले में या किसी मैदान जंग में हमारी फौज शिकस्त खा जाए तो उसके जर्नैल को यहाँ बुलाकर कत्ल कर दिया जाए। हम बुज़दिलों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर ने कहा, मलिका आलिया, अगर हम शिकस्त खाने के जुर्म में जर्नैलों को सजाए मौत देने लगते तो इस वक्त तक हम आधे से ज्यादा जर्नैलों से महरूम हो चुके होते। मलिका आलिया, जंग एक की जीत और दूसरे की हार पर खत्म हुआ करती है। एक बार हारा हुआ जर्नैल हर बार हारा नहीं करता। हमारे जर्नैलों ने रूमियों को शिकस्तें दी हैं। आपके इस हुक्म को कोई भी पसंद नहीं करेगा। एक जर्नैल को सजाए मौत देने से सारी फौज में बगावत फैल सकती है। आप जंग की सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। आज़रमिदौख्त ने कहा, आप वजीर हैं, जंग की सूरत हाल पर आप नजर रखें और जो फैसला आपसे नहीं हो सकता वो मुझसे करवाएं। उधर मुसलमान बड़े आ रहे थे, इधर आज़रमिदौख्त सयाद खश के साथ इश्क मोहब्बत का खेल खेल रही थी। वो जवानी के जज्बात से सरशार ज़ियाफतों और शिकार की रस्सियां होती चली गई। सयादख्श को उसने इतना ऊंचा रुतबा दे दिया था कि वो उल्टे पलटे हुक्म जारी करने लगा। एक रात मलिका आलिया अकेली बाहर निकल गई। उसके मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने वजीर के घर जाकर उसे बताया कि वो मलिका आलिया की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो अकेली बाहर चली गई है। वजीर घर से निकला। उसने शाही खानदान के 2-3 आदमियों को साथ लिया और उस तरफ चला गया जिस तरफ मलिका आलिया गई थी। महल के करीब ही एक बड़ी खूबसूरत हरी भरी जगह थी। घास मखमल जैसी मुलायम थी। चांदनी बड़ी शफाफ थी। थोड़ी ही दूर से निस्वानी कहे सुनाई दिए। वजीर और उसके साथी दबे पांव झाड़ पात और दरख्तों की ओट में आ गए थे। उन्होंने मलिका आलिया और सयादख्श को फोहश हरकत करते देखा। उन सब ने आगे बढ़कर उन्हें घेरे में ले लिया। आज़रमिदौख्त ने उन सबको डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मलिका की तन्हाई में मुखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? शाही खानदान के एक फर्द ने कहा, इस वक्त तुम मलिका नहीं हो। उधर सल्तनत हाथ से निकली जा रही है और इधर तुम बदकारी में मगन हो। वापस चलो। वो बोली, अगर मैं तुम्हारा हुक्म न मानूं तो? वो आदमी बोला, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी तन्हाई के इस साथी सयादख्श को भी कैद में डाल दिया जाएगा। वजीर ने कहा, खामोशी से तख्त से दस्तबरदार हो जाओ, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। सयादख्श वहां से खिसक गया और आज़रमिदौख्त उन सब के साथ चल पड़ी। अगले रोज उस खानदान के एक और फर्द शाहपुर को तख्त पर बिठा दिया गया। शाहपुर को पहले भी तख्त पर बिठाया जा सकता था, लेकिन वो आगे जाकर लड़ना चाहता था। अब आज़रमिदौख्त के रवैये को देखते हुए तख्त नशीनी कबूल कर ली। उसने पहला काम ये किया कि अपने एक मोतमद और दानिशमंद आदमी फर्रुखजाद को वजीर बना दिया। एक रोज शाहपुर ने आज़रमिदौख्त को बुलाकर हुक्म दिया, आज़रमिदौख्त, तुम्हारी शादी नए वजीर फर्रुखजाद से की जा रही है। अगर तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जाती तो तुम सयादख्श जैसे आम आदमी के साथ इश्क मोहब्बत का ये शर्मनाक खेल न खेलती। अब मैं तुम्हें आजाद नहीं रहने दूंगा। आज़रमिदौख्त ने कहा, फर्रुखजाद मेरी रियाया में से है, वो मेरा मुलाजिम है, मेरा गुलाम है। शाहपुर ने कहा, अच्छी तरह सुन ले शहजादी, तुम्हारी शादी फर्रुखजाद से ही हो रही है। हुक्म उदूली की जुर्रत तुम्हें बड़े भयानक अंजाम को पहुंचाएगी। 2-4 दिनों बाद आज़रमिदौख्त को फर्रुखजाद के साथ ब्याह दिया गया। फर्रुखजाद कोई जवान आदमी नहीं था। उसकी उम्र 60 साल से कुछ कम थी और वो तारीख के एक मशहूर जंगजू जर्नैल रुस्तम का बाप था। शादी की पहली रात फर्रुखजाद हुजला उरूसी में दाखिल हुआ और आज़रमिदौख्त की तरफ बढ़ा जो दुल्हन बनी बैठी थी। आज़रमिदौख्त ने उसे कहा, मेरे करीब मत आना, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो।
फर्रुखजाद ने कहा, क्या तुम अभी तक अपने आप को मलिका समझ रही हो? कम अक्ल लड़की, आज से तुम मेरी बीवी हो। फर्रुखजाद आगे बढ़ ही रहा था कि कमरे के अंदर से ही स्यादख्श जो कहीं छुपा हुआ था बाहर निकला। वो अकब से दबे पांव आया और फर्रुखजाद को कमर से दबोच लिया, फिर उसे उठाकर पलंग पर फेंका। आज़र मिदोख्त ने फर्रुखजाद को पीठ के बल करके एक तकिया उसके मुंह पर रख कर ऊपर से दबा दिया। फर्रुखजाद बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था, स्यादख्श अभी जवानी की उम्र में था। फर्रुखजाद सांस रुकने से तड़पा और कुछ देर तड़प तड़प कर बेहिस हो गया। स्यादख्श वहां से चला गया और आज़र मिदोख्त ने शाहपुर को इत्तला भिजवाई कि फर्रुखजाद हुजला उरूसी में मर गया है। महल में हंगामा बपा हो गया। शाहपुर के पीछे तबीब दौड़े आए। उस दौर में इस किस्म की मौत का बायस मालूम करने का कोई जरिया नहीं था। तबीबों ने कहा कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब अचानक बंद होने से मरा है। उन्होंने उसकी वजह बुढ़ापा बताई। 2 ही दिनों बाद फारिस का बादशाह शाहपुर भी इसी तरह पुरस्रार मौत का शिकार हो गया और आज़र मिदोख्त ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया और उसने ये ऐलान भी किया कि तख्त का कोई वारिस सामने आएगा तो वो शाहपुर जैसे अंजाम को पहुंचेगा। तब ये शक उभरा कि शाहपुर को कत्ल किया गया था। आज़र मिदोख्त ने स्यादख्श को वजीर से भी ऊंचा रुतबा दे दिया। इस हसीन और अय्यार औरत ने अपने पहले दौरे हुकूमत में स्यादख्श के खानदान को आला ओहदों, रुतबों और जागीरों से नवाजा था। इस खानदान के कुछ लोग फौज में अच्छे ओहदों पर थे। उन्होंने मदाइन में मुकीम फौज को अपने ज़ेरे असर कर लिया और फौज को सब्ज बाग दिखाकर सल्तनत फारिस की बजाय आज़र मिदोख्त और स्यादख्श का वफादार बना दिया। मदाइन फारिस का दारुल हुकूमत था। चंद दिनों में मदाइन की फौज सिर्फ मदाइन की होकर रह गई। उसमें हजारहा ईसाइयों की जबरी भर्ती के जरिए इजाफा कर लिया गया। पुरान दुख्त एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में उर्द शेर की बेटी लिखा गया है। उसने फारिस के शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात और उमरा की आपस की अदावत और तफरकाबाजी खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। चूंकि वो नेक तैनत औरत थी और वो मफाद परस्त नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतह पे फतह हासिल करते आ रहे हैं और मदाइन तक को मुहासरे का खतरा लाहक हो गया है और इधर आज़र मिदोख्त ने सल्तनत की तबाही से नजरें फेर कर अपनी जाती हुकूमत बना ली है, तो वो आज़र मिदोख्त के पास गई। पुरान दुख्त शहजादी ने उसे समझाने के लिए बहुत कुछ कहा जो वो खामोशी से सुनती रही। आज़र मिदोख्त ने तंजिया लहजे में पूछा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं? क्या अब तुम फारिस की मलिका बनना चाहती हो? क्या तुमने देखा नहीं कि इस तख्त ने कितनी जानें ली हैं? पुरान दुख्त ने कहा, नहीं मलिका फारिस, सवाल तख्त का नहीं, अब तो सल्तनत फारिस की बका और सलामती खतरे में पड़ गई है। तख्त पर आप ही बैठी रहें, लेकिन अहम उमूर के फैसले मुशीरों, वजीरों और उमरा को करने दें। आज़र मिदोख्त ने कहा, मेरी बात गौर से सुन लो पुरान, आज के बाद मेरे सामने ना आना। मैं मलिका हूँ, सल्तनत के भले बुरे को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुम जिनके हाथों में खेल रही हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस पंदो नसीहत से बाज आ जाओ। पुरान ने कहा, मैं पंदो नसीहत से बाज आ जाऊंगी, लेकिन सल्तनत फारिस को खात्मे से बचाने के लिए न जाने क्या कर गुजरूंगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि इस तख्त ने किसी के साथ वफा नहीं की, और ये भी सोच लो कि फारिस ही न रहा तो क्या मुसलमान आपको तख्त पर बिठाएंगे? आज़र मिदोख्त ने कहा, मुसलमान मदाइन को फतह नहीं कर सकते और कोई मुझे इस तख्त से उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पुरान ने तंजिया लहजे में कहा, ऐसे जुर्रतमंद लोग मौजूद हैं मलिका। आज़र मिदोख्त ने कहा, मुझे एक बार तख्त से उठाकर शाहपुर को बिठाया गया था। कहाँ है शाहपुर? मुझे मजबूर और बेबस करने के लिए फर्रुखजाद की बीवी बना दिया गया। फर्रुखजाद किसरा के खानदान का फर्द नहीं था, वो शाही खानदान का मुलाजिम था। मैं उसे अपना गद्दार समझती थी। मैं अपने गुलाम की बीवी कैसे बन जाती? मैंने शादी की पहली रात को उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दिया। इस तख्ते ताउस पर जो कोई हाथ डालेगा वो इन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। पुरान को पहले ही शक था कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब बंद होने से नहीं मरा, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अब आज़र मिदोख्त की बातों से ये शक यकीन में बदल गया। फारिस का मशहूर मारूफ जर्नैल रुस्तम फर्रुखजाद का बेटा था। उसे यही बताया गया था कि उसके बाप की मौत हरकत कल्ब बंद होने से वाक़ हुई थी। वो इसी को सच मानता रहा। वो उस वक्त खुरासान की सरहद पर था। एक रोज मदाइन का एक घुड़सवार उसके पास सरहद पर पहुंचा और उसे पुरान का तहरीरी पैगाम दिया। उसमें पुरान ने मदाइन के हालात और आज़र मिदोख्त की फिरौनियत की तफसील लिखी और फिर लिखा, आपके वालिद फर्रुखजाद की मौत तबई नहीं थी। मैंने महल के मुलाजिमों से जो सुराग हासिल किया है वो ये है कि आपके वालिद को आज़र मिदोख्त और स्यादख्श ने शादी की पहली रात उनका सांस रोक कर कत्ल किया था और शाहपुर को भी उन दोनों ने कत्ल किया था।
आज़र दुख्त ने मुझे कहा है कि उसके तख्त पर जो कोई हाथ डालेगा वो इन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। आप पर 2 फराइज आयद होते हैं, एक ये कि अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेना है और दूसरा फर्ज सल्तनत फारिस की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं बता चुकी हूँ कि आज़र दुख्त और स्यादख्श ने अपना लश्कर तैयार कर रखा है। जब भी आए अकेले न आए, पूरी फौज साथ लाएं, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रुस्तम ने ये पैगाम पढ़ा तो बगूले की तरह उठा। उसने कुछ सवार दस्ते मुंतखब किए और कहा, बाहर के दुश्मन की निस्बत अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। खतरा जो अपने घर से सर उठाता है वो बाहर के खतरे से ज्यादा तबाहकुन होता है। हुक्मरानी के हवसकार अपने ही मुल्क को तबाह कर दिया करते हैं। हम अपने उन साथियों और भाइयों से लड़ने जा रहे हैं जो फारिस की इतनी बड़ी शहनशाही के लिए खतरा बन गए हैं। तुम्हें अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ना होगा। रुस्तम उन दस्तों को साथ लेकर चल पड़ा। उसकी पेशकदमी बहुत तेज थी। किसी जरिए से आज़र दुख्त और स्यादख्श को पता चल गया कि रुस्तम उनके खिलाफ फौज ला रहा है। आज़र दुख्त ने मदाइन की फौज के चंद एक दस्ते रुस्तम को रोकने के लिए मदाइन से कुछ दूर भेज दिए। रुस्तम तुंदो तेज आंधी की तरह आ रहा था। उसने अपने दस्तों से कहा कि मदाइन की फौज का एक भी आदमी वापस न जाए। रुस्तम ने अपने दस्तों को पहले ही मुश्तइल कर रखा था। इन सवार दस्तों ने फैल कर मदाइन की फौज को घेरे में ले लिया। रुस्तम नामवर और तजुर्बाकार जर्नैल था। उसकी जारहाना क़यादत ने आज़र दुख्त के दस्तों को बेबस कर दिया। मार्के में बहुत खूंरेजी हुई। आखिर रुस्तम की फौज ने आज़र दुख्त की फौज को काट कर रख दिया। फिर रुस्तम ने मदाइन को महासरे में ले लिया। मदाइन की फौज ने महासरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन महासरा करने वालों का कायद रुस्तम था। शहर के अंदर पुरान शहजादी मौजूद थी और आज़र दुख्त और स्यादख्श के मुखालिफ उमरा भी मौजूद थे। उन्होंने कोई ऐसा खुफिया इंतजाम किया कि एक दरवाजा खोल दिया गया। रुस्तम के दस्तों के लिए यही काफी था। सवार उस दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए और एक और दरवाजा खुल गया। शहर के अंदर लड़ाई शुरू हुई तो पुरान और उसके हामी उमरा घोड़ों पर सवार होकर शहर में भागने दौड़ने लगे। रुस्तम भी अंदर आ गया। ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आपस में न लड़ो, तुम भाई भाई हो, एक दूसरे का खून न बहाओ, उन्हें कत्ल करो जो तुम्हें लड़ा रहे हैं, तबाह हो जाओगे, अपनी बहनों को बेवा न करो। इस तरह ऐलान कर करके इस खाना जंगी पर काबू पा लिया गया। आज़र दुख्त और स्यादख्श को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम ने तमाम फौज को एक जगह इकट्ठा करके आज़र दुख्त और स्यादख्श को एक चबूतरे पर खड़ा किया और फौज के दोनों धड़ों को बताया कि इन दोनों ने किस तरह तख्त ताज की लालच में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। रुस्तम ने ये सारी रुएदात सुनाकर स्यादख्श को आगे किया और अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा गया कि आज़र दुख्त की आंखें निकाल कर इसे शहर से निकाल दिया जाए। 2 सिपाहियों ने आज़र दुख्त को मजबूती से पकड़ लिया और जल्लाद ने खंजर की नोक से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। उसके बाद वो तारीख से हमेशा के लिए गायब हो गई। रुस्तम ने उमरा से सलाह मशवरा करके उसी वक्त ऐलान कर दिया कि आज से पुरान मलिकाए फारिस है। वहीं ताजपोशी की मुख्तसर सी रस्म अदा करके पुरान ने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया कि आज से रुस्तम ही वजीर है और रुस्तम ही तमाम अफवाज का कमांडर इन चीफ है और सल्तनत के अहम उमूर के फैसले रुस्तम ही किया करेगा। पुरान ने ये भी कहा कि ये फरमान रियाया के हर घर और हर फर्द तक पहुंचा दिया जाए कि फारिस के हर फर्द पर रुस्तम की इताअत फर्ज कर दी गई है और हर फर्द बशर पर यह फर्ज आयद होता है कि सल्तनत फारिस को मुसलमानों से बचाने के लिए अपने माल और अपनी जानें कुर्बान कर दे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।